First of all, good morning to all students. In the last video of class 12 BST, we discussed staffing process. There are basically 8 steps covered in the staffing process. The first step is estimating manpower requirement. It involves forecasting and determining the number and kind of manpower required by the organization in future. Second step is recruitment. In this step, we search for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in the organization. Third step is selecting from among the applicants, that is selection. In this process, we choose a right candidate for the right job from the pool of candidate obtained through recruitment. The fourth step is placement and orientation, that is occupying the post or position for which the person has been selected. And orientation implies introducing the selected employees to the other employees and familiarizing him with rules and policy of the organization by giving him a brief presentation about the company. The fifth step is training and development. Under this step, we improve job knowledge, skill and attitude of employees on a regular basis so that they may perform their job efficiently. The sixth step is performance appraisal. It is a very important step in a staffing process. It means evaluating an employee's current or past performance against a predetermined standard. So in this step, the capability of employees is judged. In seventh step, the promotion and career planning. In this step, we address career related issues and promotional avenues for their employees, which improve to be beneficial for both an employee and the organization. And the last step is compensation. In this step of staffing, we forms of pay or rewards given an employees, which in the form of direct financial payments or indirect payments. Today we will discuss the other topic, that is aspect of staffing or component of staffing. When we are talking about the staffing process, there are basically 3 important aspects of staffing. You know very well what is staffing. Staffing is a process in which we filling and keeping filled a position in the organizational structure. It goes as a continuous process because new jobs are created every time, as employees may leave the organization off and on, and also because of growth and diversification in an organization. It is a process just after planning and selection of the organization structure. So we can say that staffing may be defined as the process of hiring and developing the required personnel to fill in various positions in the organization. So let's study the 3 important components of staffing which are covered in the whole staffing process. The first aspect or component of staffing is recruitment. Second one is selection and number third is training. So the whole staffing process में 3 बेसिक चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करते हैं. रिक्रूटमेंट पे बात करते हैं. रिक्रूटमेंट का मतलब होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी जॉब वैकेंट है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए कैंडिडेट को अप्लाई के लिए मोटिवेट करना, क्योंकि मेरे पास जितने ज़्यादा ऑप्शन होंगे उतना डिसीज़न हमारा एक्यूरेट होगा. सपोज़ मेरे पास एक जॉब खाली है, एक एम्प्लॉयज़ की जगह है, और अगर उस एक एम्प्लॉयज़ को फिल करने के लिए अगर हम 10 एम्प्लॉय का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, 10 एम्प्लॉयज़ का इंटरव्यू लेते हैं, 10 एम्प्लॉयज़ के ऊपर पूरा स्टाफिंग प्रोसेस कंडक्ट कराते हैं, सो थोड़ा कॉस्टली तो पड़ता है. लेकिन जो बंदा सेलेक्ट होके आता है ना, वो बंदा
ज़्यादा एक्यूरेट होता है और हमारा जो स्टाफिंग डिसीजन होता है वो ज़्यादा करेक्ट होता है. इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन which is another component of staffing, selection is a very important part of the staffing process because अगर selection करने का तरीका सही नहीं होगा, अगर हम सही ढंग से लोगों को सेलेक्ट नहीं करेंगे, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस अच्छे से नहीं लेंगे, सो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आप कितना भी अच्छा रिक्रूटमेंट करा लें, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को रख लें, लेकिन आप उसमें से सही कैंडिडेट को चूज़ करना बहुत ही टफ टास्क होता है. एंड द थर्ड स्टेप इज़ ऑफ स्टाफिंग इज़ ट्रेनिंग. जब हम रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के बाद एम्प्लॉयज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ट्रेन करते हैं ताकि वो अपने एटीट्यूड में जॉब परफॉर्मेंस को लेकर आएँ, उनकी नॉलेज स्किल को इंक्रीज़ करते हैं, जिससे उनका परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ होता है. सो लेट डिस्कस दी three important aspects of staffing. The first one is recruitment. What is recruitment? Recruitment means the process under which different sources for future employees are searched for and they are motivated to apply by sending application for their selection in the organization. It is a positive step which aims at attracting number of candidates to apply for the given job. The higher the number of people who apply for a job, the higher will be possibility of getting a suitable employees. यानी रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने फ्यूचर एम्प्लॉयज़ को सर्च करते हैं और जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनको मोटिवेट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन हमारे पास आए. सो रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव स्टेप है, एक पॉजिटिव प्रोसेस है, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को जॉब ऑफ़र करते हैं. जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम एक सूटेबल एम्प्लॉई अपने जॉब के लिए, अपने बिज़नेस के लिए रख सकते हैं. जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि अगर 100 लोगों में से 10 एम्प्लॉयज़ को चूज़ करना है और 1000 एम्प्लॉयज़ में से 10 एम्प्लॉयज़ को चूज़ करना है, तो सिलेक्शन प्रोसेस ज़रूर टफ होगा, लेकिन जो 10 लोग सेलेक्ट होके आएंगे वो एज़ कम्पेयर टू द 100 रिक्रूटमेंट से बेटर होंगे, क्योंकि 1000 एप्लीकेंट्स में से हम 10 एम्प्लॉयज़ चूज़ कर रहे हैं. एंड वहीं दूसरी सिचुएशन में हम 100 एम्प्लॉय में से 10 लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो सिलेक्शन रेट है वो 10% है और यहाँ है 1%. आप कहोगे सर कि 100 में से 10 लोग को चूज़ करना ईजी है, यानी सिलेक्शन ईजी हो जाएगा, बट लेकिन जो सिलेक्शन होके आएंगे, जो एम्प्लॉयज़ होके सेलेक्ट होके आएंगे, उनकी सुटेबिलिटी एज़ कम्पेयर टू द 1000 एम्प्लॉयज़ में जो सिलेक्शन होके आएंगे उनसे एफिशिएंसी कम ही होगी. यानी बेसिकली अगर हम बात करें तो रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो सिंपली वे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेंट्स का अरेंजमेंट करता है. ओके, उनको मोटिवेट करते हैं कि हमारे यहाँ जो जॉब खाली है, आइए एप्लीकेंट्स हमें ऑफ़र दीजिए, हमें जॉब के लिए अप्लाई करिए, ताकि हम आपका सिलेक्शन टेस्ट करके आपको जॉब दे सकें. लेकिन जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ होंगे उतना ही हमारा सिलेक्शन डिसीज़न बहुत बेटर होगा. जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. अगर आपके जॉब के लिए आपको अर्जेंट आपको एक एम्प्लॉय रखना है और 2 लोग आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तब 2 लोगों के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ही आसपास काम करोगे. भाई 10 एम्प्लॉय आते हैं तो आप खुश हो जाते हो कि चलो 10 लोग आए हैं जॉब के लिए, उसमें से हम बेटर कैंडिडेट सेलेक्ट कर सकते हैं. 15 आ जाएंगे तो और बढ़िया बात है, 20 आ जाएंगे तो और बढ़िया बात है. यानी एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होंगे उतना ही एम्प्लॉयज़ की सुटेबिलिटी क्लियर होगी, यानी हायर विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सुटेबल एम्प्लॉयज़. सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट इज़ अ प्रोसेस इन विच वी मोटिवेट द एप्लीकेंट्स टू अप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर जॉब. It is a positive step because it attracts the number of candidates to apply for the given job. And the benefits ये होता है recruitment का कि with the help of recruitment the number of people who apply for a job is higher. So the higher will be the possibility of getting a suitable employee. Now we will move to the second important aspect of staffing, that is selection. रिक्रूटमेंट में हम लोग क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को बुलाते हैं
और उसमें से जितने मेरे पास पोस्ट वैकेंट होती है उतने लोग को सेलेक्ट करते हैं. सो सिलेक्शन ऑन द अदर हैंड इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस इन विच अ पर्सन इज सेलेक्टेड एंड अदर्स आर रिजेक्टेड. यानी हम पर्सनस को सेलेक्ट करते हैं और बाकियों को क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं. इट्स एम्स द सेलेक्टिंग द मोस्ट रेटेबल पर्सन आउट ऑफ द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर द जॉब. यानी रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, 1000 एम्प्लॉयज़ आएँ और हमारे यहाँ जॉब के लिए इंटरव्यू दें, सिलेक्शन टेस्ट दें, और उसमें से सिलेक्शन में से हम 100 एम्प्लॉयज़ को चूज़ कर रहे हैं या 10 एम्प्लॉयज़ को चूज़ कर रहे हैं. सो पॉसिबिलिटी तो ज़्यादा अच्छी है कि ज़्यादा से अच्छे एम्प्लॉयज़ आएंगे. तो सिलेक्शन का मतलब क्या है, सिलेक्शन इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस इन विच वी सेलेक्ट सम पर्सन और remaining person are rejected. Okay, the next aspect is training. After the recruitment and selection, we conduct a training program for the selected candidate in the staffing process. So training is a process through which efforts are made to increase the efficiency in the employee for a particular job so that their knowledge and skill both are increased. यानी with the help of सिलेक्शन प्रोसेस, विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग प्रोसेस, हम क्या करते हैं, अपनी एम्प्लॉयज़ की किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए उनकी इफ़िशियंसी को इंक्रीज़ करते हैं, उनके नॉलेज को इंक्रीज़ करते हैं, स्किल को इंक्रीज़ करते हैं, उनको प्रॉपर अपने जॉब वर्किंग पे हम लोग फोकस कराते हैं कि हमारे यहाँ जॉब जो किया जाता है वो कैसे करना है. उस जॉब के रिगार्डिंग आपकी नॉलेज और स्किल को इम्प्रूव किया जाता है, आपकी इफ़िशियंसी को इंक्रीज़ किया जाता है और एफर्ट्स किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनिए. सो विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम यू कैन ईजली अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग. आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैं क्या किया जाता है, एप्लीकेंट्स होता है, जितने भी एप्लीकेंट्स होते हैं उनको मोटिवेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिक्रूटमेंट. सो इट इज़ द फर्स्ट स्टेप जिसमें हम अपने जॉब के लिए लोगों को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं. ओके, यानी जॉब का कोई डिस्क्रिप्शन होता है, जॉब की कोई नीड्स होती है. यानी मेरे यहाँ 10 जॉब खाली हैं डिफरेंट मैनेजर्स की, उनकी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, डिफरेंट डिस्क्रिप्शन है, डिफरेंट डिग्रीज़ हैं. उस बेसिस पे हम लोगों तक इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं, पर्सन्स को, पब्लिक को, कि प्लीज़ कम एंड अप्लाई फॉर द जॉब. सो द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द स्टाफिंग इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सुटेबल कैंडिडेट. Thereafter, on the basis of organizational job, we conduct a selection test. It is an assessment, evaluation and matching the job description for the suitable कैंडिडेट. यानी जो सुटेबल कैंडिडेट है उनको हम सर्च करते हैं, उनको मैच करते हैं कि किनकी कैपेबिलिटी हमारे ऑर्गेनाइजेशनल जॉब से मैच करती है. उनको असेस करते हैं, उनको इवेल्युएट करते हैं और उनको अपने जॉब के अकॉर्डिंग कि ये हमारी जॉब को पूरा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, फिल कर पाएगा कि नहीं पाएगा. सो उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट करते हैं. आफ्टर दैट जो सेलेक्टेड पर्सन्स होते हैं, सिलेक्शन करने के बाद, क्योंकि देखिए सिलेक्शन टेस्ट जो होता है वो कुछ मिनटों का होता है. जैसे मैंने रिटन टेस्ट ले लिया तो उनकी रिटन एबिलिटी चेक हो गई, उनकी प्रैक्टिकल टेस्ट ले लिया, उनका मेडिकल टेस्ट ले लिया, उनका हम साइकोलॉजी टेस्ट ले लिया. तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि मैंने उनकी 3 आवर्स को चेक किया. माली 1 आवर्स का मैंने रिटन टेस्ट ले लिया, 1 आवर का उनका प्रैक्टिकल टेस्ट ले लिया, डेमो ले लिया, एज वेल एज़ 1 आवर का उनका एप्टीट्यूड, साइकोलॉजी सब मिला के अदर टेस्ट ले लिए. तो 3 घंटे में मुझे अपने एम्प्लॉयज़, बेस्ट एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करना है. लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि जितने रिक्रूटमेंट्स के थ्रू जितने एम्प्लॉयज़ हैं उसमें से सही बंदे सेलेक्ट होके आएंगे? नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो उतने ज़्यादा इवैल्यूएशन अच्छी नहीं होती है प्रैक्टिकल सेंस में जितना एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन के समय वो होते हैं. सो उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए, उनकी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस को इंक्रीज़ करने के लिए, स्किल को इंक्रीज़ करने के लिए हम ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप करते हैं. सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि वाई दीज 3 एलिमेंट्स
will be treated as the component of staffing, because these three things we cannot be conduct the staffing process efficiently. क्योंकि स्टाफिंग एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस का सही या गलत होना भी ज़रूरी हो सकता है, चांसेस हैं। जैसे मैंने कोई स्टाफिंग प्रोसेस रखा, वो स्टाफिंग प्रोसेस अच्छा हो सकता है। मान लीजिए मेरे पास एक जॉब के लिए 2 ही बंदे आए, तो वहाँ रिक्रूटमेंट ही गलत हो गया, वहाँ रिक्रूटमेंट उतने अच्छे ढंग से नहीं हुआ, तो वहाँ सिलेक्शन और ट्रेनिंग बेटर नहीं हो पाएगा। मान लीजिए मेरे पास 1000 एम्प्लॉयज़ अच्छे आए, 1000 एम्प्लॉयज़ ने इनविटेशन दिया, अप्लाई किया जॉब के लिए, ठीक है। अब मैंने सिलेक्शन टेस्ट ही अच्छा नहीं किया, तो आप कितना भी ट्रेनिंग दे दो, आप क्या मान सकते हो कि वो आपके जॉब को सेटिस्फाई कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि वो इंटरनली बिल्ट ही नहीं है। ओके, नाउ हम तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को आपने बुलाया, उससे अच्छा सिलेक्शन टेस्ट पे लिया, लेकिन उनको अपने जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में अच्छे से ट्रेंड ही नहीं कर पाए, उनको जॉब के बारे में नॉलेज नहीं दे पाए, उनको ट्रेनिंग का मतलब देखिए बेसिकली ये होता है ना कि हर कंपनी का, हर फर्म का काम करने का तरीका अलग अलग होता है, और हर कंपनी की अपनी एम्प्लॉयज़ से डिमांड भी अलग अलग होती है। पे तो वो करते हैं, बट उनकी ज़रूरत होती है कि वे सारे एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग काम करें, हमारा जो टारगेट है, हमारा जो गोल है, उसके अकॉर्डिंग काम करें। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये पॉसिबल होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग। जब हम उन्हें ट्रेन करें, ट्रेन का मतलब ये नहीं होता है कि आप उनको 1-2 महीने के लिए उठाकर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में डाल दें, नहीं। दे आर वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग जो अभी आप पढ़ोगे। दे आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब। ऑफ द जॉब में क्या होता है, जैसे पर्टिकुलरली आपको किसी मशीनरी को हैंडल करना सिखाना है। कोई एम्प्लॉयज़ है, फ्रेशर है, उसे आपके यहाँ बड़ी बड़ी मशीन है, उसको ऑपरेट करने नहीं आता, तो उसको आके सेलेक्ट करने के बाद कि हाँ ये बंदा चला सकता है, ये बंदा प्रोडक्शन मैनेजर बन सकता है, ये लोगों को गाइड कर सकता है, तो उसके लिए उसको ट्रेन करोगे ना। तो कुछ जगहों पे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, कहीं ऑफ द जॉब। जैसे ऑफ द जॉब क्या होती है, जैसे बड़ी बड़ी मशीनें हैं, उनको डायरेक्ट हम प्रोडक्शन के लिए नहीं भेज सकते कि जाइए आप मशीन पे वर्क करिए। अरे भैया पहले सीखो तो। हाँ, आपने डिग्री ली है, आपने ये किया, आपने वो कोर्स किया, लेकिन प्रैक्टिकली वे में बातें अलग होती हैं। ऑन द जॉब में क्या होती है, जैसे कुछ जॉब्स नेचर ऐसी होती हैं जहाँ पे आप काम करते करते काम को सीख जाते हो, ठीक है। आप जैसे पढ़ाते पढ़ाते टीचर बन जाते हो। बेसिकली अगर आप टीचर्स की जॉब देखो तो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, क्योंकि हाँ ऑफ द जॉब भी कई तरीके हैं, लेकिन ऑफ द जॉब उतना प्रैक्टिकली नहीं होता जितना कि ऑन द जॉब होता है। ऑन द जॉब आप 1-2 महीने के लिए आपको एज अ एड हॉक टीचर रख लिया जाता है कि आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट होइए, उनकी नीड को समझिए, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम को कंडक्ट करिए। सो इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ ट्रेनिंग। सो अगर हम बात करें तो किसी भी स्टाफिंग प्रोसेस में ये तीनों चीज़ों का बेटर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप कभी भी इन फ्यूचर सिलेक्शन के लिए जाएंगे तो वहाँ ये 3 चीज़ें बहुत ही अच्छे ढंग से पाएंगे। पहला, रिक्रूटमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को बुलाना, कैंडिडेट्स को बुलाना। सिलेक्शन के लिए कई सारे टेक्निक्स यूज़ करना, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। आप देखते हैं कभी कभी इंटरव्यू पैनल में 10 से 12 लोग बैठते हैं। हाँ, और ट्रेनिंग के लिए यानी जॉब करने, जब आप करने आपकी ज्वाइनिंग हो गई, उसके बाद जब आप जॉब करने जाते हैं तो आपको वहाँ के इन्वामेंट से इंट्रोड्यूस कराना, वहाँ के जॉब कंडीशंस को वर्किंग इन्वामेंट में आपको ढालना, शेप क्रिएट करना, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दे आर बेसिकली 3 एस्पेक्ट ऑफ ट्रेनिंग। नाउ वी विल मूव टू द 1 by 1। हम इन चीज़ों का डिटेल में स्टडी करेंगे, और यही आपके कोर्स में इंक्लूड होता है कि रिक्रूटमेंट की क्या प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट कैसे किया जाता है, रिक्रूटमेंट के सोर्सेज क्या क्या हैं, वही सिलेक्शन क्या होता है, सिलेक्शन की प्रोसेस कैसे होते हैं, कैसे हम सेलेक्ट करते हैं किसी एम्प्लॉयज़ को, एंड ट्रेनिंग। क्योंकि द होल स्टाफिंग प्रोसेस आर वेरी ब्रॉड। तो इनके जो तीनों कंपोनेंट हैं ना, ये बहुत ही डीप हैं, ये बहुत इनकी डीप एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, और यही आपके क्लास 12 CBSE के करिकुलम में इंक्लूड भी है कि वी आर डिटेल स्टडीड अबाउट द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। सो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है बेसिकली, वो भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ स्टाफिंग, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाफिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, एंड देयर आफ्टर वी डिस्कस द स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस में टोटल 8 स्टेप्स थे। उस 8 स्टेप्स में से ये जो 3 स्टेप्स था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। इन पूरे तीनों स्टेप्स को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे।
Okay, so one by one we discuss the recruitment. What is recruitment? What is the process of recruitment, and what are the sources of recruitment? Selection. Thereafter, in this topic, we discuss what is selection, what are the process of selection, methods of selection, and as well as we study the training. What is the meaning of training? What are the needs of training? What are the methods to providing a training to the employees? So आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिक्रूटमेंट के बारे में. Okay, so process of recruitment of employee. The first topic, that is, recruitment is a continuous process. It can be done either by a centralized personnel department, by every department to meet its own needs. Centralized recruitment is a preferable in the most cases. In words of Flippo, recruitment is a process of searching for the prospective employees and stimulating them to apply for the job in the organization. It is a very ideal definition. इस definition को याद कर लीजिएगा. फॉर द रिक्रूटमेंट के लिए रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़, प्रोस्पेक्टिव मतलब फ्यूचर एम्प्लॉयज़ को सर्च करते हैं और उनको स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जॉब के लिए अप्लाई करें. स्टिमुलेट मतलब उनको मोटिवेट करना, उनको इंटरनली वाइब्रेट करना कि प्लीज़ अप्लाई करिए इस जॉब के लिए. तो रिक्रूटमेंट इज़ अ प्रोसेस एंड इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस. ये लगातार चलता रहता है. और ये भी बात हम आपको बता दें कि रिक्रूटमेंट जो होता है वो सेंट्रलाइज वे में भी होता है, डिसेंट्रलाइज वे में होता है. यानी कुछ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, वो रिक्रूटमेंट के लिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं. इसमें क्या होता है कि बड़ी कंपनियां, क्या होता है कि कभी कभी जैसे यहाँ एक डिपार्टमेंट बना दिया, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जिसका काम है रिक्रूट करना. तो जिस भी डिपार्टमेंट को किसी भी पर्सन की या किसी भी वर्कर की ज़रूरत होती है तो वो इन्फॉर्मेशन देता है एचआरडी डिपार्टमेंट को कि मेरे यहाँ इतनी जॉब्स खाली हैं, सो प्लीज़ मुझे मैन पावर की कमी हो रही है, सो प्लीज़ मेरे यहाँ मैन पावर अवेलेबल कराइए. सो वो इन्फॉर्मेशन जाती है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पास और वो उस जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग न्यू पर्सन को एडमिट कराते हैं एज एम्प्लॉयज़. कुछ जगहों पे आपको ये देखने पड़ेगा कि जहाँ पे रिक्रूटमेंट का जो तरीका होता है वो डिसेंट्रलाइज्ड होता है. यानी आप हर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर सकता है. जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए कि एक पूरे और बड़े से ऑर्गेनाइजेशन में कई डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट. तो इस डिसेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि परचेज डिपार्टमेंट अपने से अपने एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर सकता है. सेल्स डिपार्टमेंट अपने नीड्स के अकॉर्डिंग अपने एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर सकता है. सो दे आर बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, दैट इज सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट एंड डिसेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट. सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट हमारे एरिया में काम करते हैं, वो अगर उनको मैन पावर की नीड होती है तो वो सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट को, दिस इज़ अ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करता है कि मुझे मैन पावर की ज़रूरत है और इस जॉब पोजीशन के लिए बंदा चाहिए. तो उस जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग एचआरडी डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करता है. वहीं डिसेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि अपना डिपार्टमेंट जो है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग खुद से स्टाफिंग प्रोसेस ऑर्गेनाइज कराता है. तो इट इज़ बेसिकली डिपेंड अपॉन दी ऑर्गेनाइजेशन कि वो किस तरह का रिक्रूटमेंट बेसिसली फॉलो कर रहा है, सेंट्रलाइज फॉलो कर रहा है कि डिसेंट्रलाइज फॉलो कर रहा है. लेकिन अगर हम बात करें कि क्या फेवरेबल है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आइडियल है, तो आइडियल वे में अगर हम बात करें तो सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट इज़ प्रेफरेबल इन मोस्ट केसेस. ठीक है, क्योंकि बाकी डिपार्टमेंट का काम अपना अपना काम करना है. उनका काम ये थोड़ी ना करना है कि एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करें, उसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया. मैन पावर की कमी है तो आप ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म करिए, ऑर्गेनाइजेशन उसकी व्यवस्था करेगा. परचेज डिपार्टमेंट का काम परचेज डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइज करना थोड़ी ना है, ये तो टॉप लेवल एम्प्लॉयज़ का काम है ना. तो आप वो करिए, आपका जो काम है वो करिए. तो बेसिकली अगर हम बात करें तो प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय वो कॉन्टीन्यूअस होता है. इसके लिए अलग से सेपरेट डिपार्टमेंट बनाना ही ज़्यादा प्रेफरेबल होता है. Now we will discuss the process of recruitment. In the process of recruitment, there are basically 4 steps. You can see the first step is determination of vacancies. The second one, determination of source of recruitment. Number 3, invitation to candidate. And number 4, in selection of candidate. Yani in the
ये पूरा प्रोसेस जो होता है रिक्रूटमेंट का, इसमें बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं। सॉरी, 1, 2, 3, 4। सबसे पहले हम वैकेंसीज यानी मैन पावर को पता करते हैं कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। देयर आफ्टर वी डिटरमाइन द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कि हमारे पास कितने सोर्स अवेलेबल हैं। देयर आफ्टर उन सारे सोर्सेज को सर्च करने के बाद उनको इनवाइट करना कि सो प्लीज़ आइए और हमारे जॉब के लिए अप्लाई करिए, और फिर उनमें से कैंडिडेट को सेलेक्ट करना कि कितने कैंडिडेट के ऊपर सिलेक्शन टेस्ट कंडक्ट